Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the final chapter in the book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए आज जो है अमाल की किताब का आखिरी जो बाप है वो लेकर आए हैं। Remember that the book of Acts is the second of two parts that Luke wrote to a man named Theophilus. याद रखें कि जब हम अमाल की इस किताब को पढ़ते हैं जो लूका तबीब ने लिखी है, तो इसमें उसने खास एक हिस्से के अंदर उन लोगों को तवज्जो दी है जो खुदा के लोगों की पहचान करना जानते हैं। Theophilus was a believer who was fighting against people called the Judaizers, who said you had to follow Jewish law in order to get into the kingdom of God. Sorry, can you speak it again? Theophilus was told by the Judaizers, a group of people who said it wasn't enough to believe in Jesus, you had to follow Jewish customs and traditions to get into the kingdom of God. और ये जो हम लफ्ज देखते हैं ए तसीसी हो, ये लफ्ज जो है ये दर हकीकत ईमानदारों को कहा गया है। और ये कहाँ से आया? दर हकीकत ये वही यहूदी है जो ये बात सोचते थे कि नजात का ताल्लुक जो है वो यहूदी जो रस्म और रवाज है उनसे मुतल्लिक है। So Luke wrote an orderly account of the ministry of Christ for the 3 years he was on this earth and the ministry of his disciples after he returned to the Father. याद रखें कि जो लुका तबीब है उसने जब इन बातों को लिखना शुरू किया तो उसने मसीह यीशु के 3 साल जमीनी खिदमत के मुतालिक भी लिखा और बाद में मसीह के उन रसूलों की खिदमत के मुतालिक भी दर्ज किया। So when you and I read the books of Luke and Acts, we can see eyewitness accounts of everything that Jesus did when he came to the earth to when he went back to heaven. जब मैं और आप जो है लूका की अंजील को या अमाल की इस किताब को पढ़ते हैं तो इसमें हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसे गवाह मिलते हैं जिन्होंने मसीह यीशु को अपनी आंखों से देखा और जो कुछ मसीह ने जमीन पर किया उसे भी देखा और ये भी देखा कि मसीह यीशु जमीन से आसमान पर अपने बाप के पास पहुंचाए गए हैं। And we also have eyewitness accounts of his death, that is, when they crucified him, buried him, but 3 days later he rose from the dead. और हम देखते हैं कि जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ऐसे गवाह भी मिलते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से मसीह यीशु की मसलूबियत को देखा, मसीह यीशु के दफन किए जाने को देखा और मसीह यीशु का तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने को भी देखा। And these apostles who saw him die and thought that their mission was over, 3 days later saw him resurrected, and he instructed them what he wanted them to do. और वो रसूल जो मसीह के साथ थे जब मसीह यीशु को जो है सलीब दी गई तो उन्होंने सोचा कि वो मंसूबा जो था वो खत्म हो चुका है, लेकिन मसीह यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। And this wasn't a 10-minute instruction. It wasn't a 1 hour instruction. It wasn't a 1 day instruction. हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु का उनसे दोबारा जी उठने के बाद सामना हुआ तो ये कोई 1 घंटे की गुफ्तगू नहीं हुई मसीह की उनके साथ, ना ही 1 दिन की हुई है। Jesus instructed them after he had raised from the dead for 40 days and opened their eyes to all the things they didn't understand while they were with him for the 3 years on this earth. और मसीह यीशु उन्हें समझाता रहा 40 दिन तक उन सारी बातों के मुतालिक जब वो मसीह के साथ थे जिन्हें वो समझ ना सके थे। And Jesus told them all the things they didn't understand about the coming kingdom of God. और वो सारी बातें जो मसीह यीशु की बादशाही के मुतालिक थी जिसे रसूल उस वक्त ना जान सके थे, मसीह यीशु जी उठने के बाद उन्हें समझाता रहा।
But just having a full understanding of everything that had happened and being eyewitness to it was not enough. और हम देखते हैं कि जबकि उन्होंने अपनी आंखों से सारी चीजों को देखा था और सब बातों को समझा, तो भी शायद वो काफी ना था। Jesus told them that they needed to go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit to come. और फिर यीशु ने कहा कि अब तुम्हें यरूशलेम जाना है और वहां पर इंतजार करना है जब तक कि खुदा का पाक रूह तुम पर नाजिल ना हो जाए। For the Holy Spirit would come upon them and guide them and give them power and understanding so that they might proclaim the witness of Jesus resurrected and the coming kingdom to the world. और वो पाक रूह जो है तुम्हें समझ देगा और तुम्हें सिखाएगा कि आपके खुदा के बादशाही के मुतालिक, और तुम्हें कुव्वत का लिबास देगा और तुम जाकर दुनिया में मुनादी करना। And we saw in the first 10 chapters that Peter and the other apostles, after going to the Holy Spirit and receiving the Holy Spirit, boldly preached the message of Christ in Jerusalem. और हम ये अमाल के 10 एबाब जब पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं जब खुदा का पाक रूह रसूलों पर नाजिल हुआ तो वो बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करने लगे, क्या यहूदियों में क्या गैर अक़वाम के अंदर। In Acts chapter 2, we saw that the church began as many believed his message, and the Holy Spirit came upon them. अमाल की किताब का दूसरा बाब हमें बताता है कि खुदा का पाक रूह उन पर नाजिल हुआ और उस वक्त कलीसिया का आगाज हुआ और बहुत सारे गैर ईमानदार बनकर कलीसिया का हिस्सा बने। This growth of the church did not come without great cost, as the disciples were thrown into prison and told that if they didn't stop preaching, they would be killed. याद रखें कि रसूलों के हजार सानियों कैद के अंदर डाले जाना, उनको पटवाए जाने की वजह से ही कलीसिया की जो बढ़ोतरी है बढ़ जाने का बायस बना। In fact, James, the brother of John, who was imprisoned with Peter, was beheaded by Herod Agrippa. और हम देखते हैं कि यकूब जो यूहन्ना का भाई था, पतरस रसूल के साथ जो है वो कैद खाने में भी जो है वो डाला गया और बादशाह के हुक्म से उसका कत्ल भी किया गया। But despite this opposition against the message of Christ, who they had killed and are now killing the disciples, the word grew and the church expanded. बैरूनी मुखालफत की वजह से भी हम देखते हैं खुदा का पैगाम रुका नहीं है। गो कि उन्होंने मसीह को कत्ल करने की कोशिश की, उसने सलीब दी और अब रसूलों को हजार सानियां ले रहे हैं, तो भी मसीह का मंसूबा खत्म नहीं हुआ बल्कि इसका कलाम फैलता गया। हालेलुया। And because so many people were growing in the church, the apostles could no longer meet the needs, and they brought up disciples who were including Stephen and Philip and others to help minister to the widows. क्योंकि कलीसिया बढ़ती ही जा रही थी और रसूल हर किसी की जरूरत के मुताबिक उससे मिल नहीं पा रहे थे और उनकी जरूरियात का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अपनी कलीसिया में से ईमानदार लोगों को चुना जाए और 7 ईमानदारों को चुना गया, जिसमें स्टिफनस और फिलिपस और बाकी जो रसूल थे शामिल थे। And Stephen, filled with the Holy Spirit, began to do miraculous signs, much like the disciples had done, and preached the message of Christ throughout the land. और स्टिफनस जो है खुदा के पाक रूह से ममूर होकर बहुत सारे मौजज़ात को दिखाता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रसूल दिखाया करते थे, और वो खुदा के कलाम की मुनादी बड़ी दिलेरी के साथ करता था। He became so popular in Jerusalem that many of the Jewish leaders came and did the same thing that they had done to Jesus, threatening to kill him. और हम देखते हैं कि जब वो यरूशलेम के अंदर बहुत मशहूर होता चला गया
किया, उसे 1000 सालें दी गई और उसे संसार किया गया, हत्ता कि स्टिफनस को इतना संसार किया गया कि वो मर ही गया। Stephen was not concerned about his life and would not be silenced. Instead, he told the Jewish leadership they were stiff necked, just like their forefathers, always rejecting the Holy Spirit and God's messengers. लेकिन स्टिफनस खुदा के पाकरूह से दिलेर होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर उन यहूदियों से जो नाफरमान थे उन्हें कहता है कि तुम अपने बाप दादा की तरह नाफरमान और ऐसी कौम हो जिनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं। He told them that just like their forefathers, they had killed not only a messenger of God, but the Son of God, the Messiah, and because of it, God would bring wrath upon them. और स्टिफनस उन्हें कहता है कि तुम अपने बाप दादा की तरह गर्दन कश कौम हो जिन्होंने ना सिर्फ नबियों को कत्ल किया बल्कि उस मसीह को भी जो खुदा का बेटा था उसे भी संसार किया है और कत्ल किया है, इसीलिए अब तुम पर खुदा का गज़ब इलाही नाजिल होगा। Instead of agreeing with what Stephen said, they showed that Stephen was correct in that they killed another messenger of God, Stephen, as they stoned him to death and gave his clothes to Saul. और हम क्या देखते हैं कि जब स्टिफनस उनसे ये बातें कर रहा था और इस्राएलियों ने इसकी बजाय कि वो स्टिफनस की बातों को कबूल करते, उन्होंने स्टिफनस को भी संसार किया और उसे कत्ल किया और साउल नामी शख्स जो है उनके जो स्टिफनस को कत्ल कर रहे थे उनके कपड़ों की हिफाजत करता था। Now, this is very important to understand. Saul was a Pharisee who was killing Christians and jailing Christians because they were proclaiming the message of Christ. ये बहुत ही अहम है कि हम इस बात को समझें कि साउल कौन है। साउल एक फरीसी है और ये फरीसी जो साउल है ये मसीहों को कत्ल करवाता है और उन्हें कैदों के अंदर भी डालता था। Saul believed that if you were going to please God, you had to follow the religious traditions that he was brought up with, which are Jewish traditions. और इनका ईमान क्या था? इनका ईमान था कि अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो जरूर है कि यहूदी दस्तूर और रवाज के मुताबिक हम चलें। He believed this so much that he was willing to kill people like Stephen, who were proclaiming that you could be in the kingdom of God by simply believing in Jesus as the Messiah. और इनका ये भी ईमान था कि अगर कोई मसीह की बादशाही की मनादी करता है, जिसने स्टिफनस ने कहा जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा और वो खुदा की बादशाही का वारिस होगा, उन्हें कत्ल करना हम पर वाजिब है। And we have today, throughout our world, many religions who believe if you're faithful to their religious acts, that you will be in the kingdom of God. आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मजहब और फिरके हैं जो इस बात पर जामिया ईमान रखते हैं कि आसमान पर जाने के लिए उनकी मजहबी रसूमात को फॉलो करना या उन पर अमल करना लाजम है। But we have eyewitnesses who have given testimony that Jesus, though they tried to kill him and his message, rose from the dead and then empowered eyewitness apostles to continue to proclaim that message to us until Jesus returns. लेकिन हमारे पास उम्मीद क्या है और हम जो है उस बात को जामिया ईमान रखते हैं और हम कलामे अक़दस में ऐसे गवाह जिन्होंने अपनी आंखों से मसीह यीशु को इस दुनिया में देखा, जो सलीब पर कुर्बान हुआ, मर गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, उसी की बादशाहत है। Now, many people say, well, these disciples didn't really know what they were talking about, so we disregard them, but we have this Saul who was killing Christians meets Jesus on the road to Damascus, the resurrected Christ, and Jesus says,
Saul, Saul, why are you persecuting me? हम इस बाइबल को जब पढ़ रहे थे तो हमने ये भी देखा कि जब रसूल मनादी कर रहे थे तो बहुत सारे लोग शायद ये सोचते रसूल तो यीशु के साथ रहे हैं, ये तो यीशु ही की बात करेंगे। लेकिन वो साउल जो मसीहों की मुखालफत करता था, जब दमिश्क की राह में जा रहा था तो यीशु उस पर जाहिर हुआ और यीशु ने उसको कहा, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। It was at that time that Saul realized that he was fighting against God's plan. He wasn't part of God's plan, and that he needed to change his mindset to believe in Jesus and then proclaim his name. और उस वक्त हम देखते हैं जब साउल ने इस आवाज को सुना तो वो समझ गया कि वो खुदा के बरखिलाफ है, खुदा के मंसूबे में नहीं है। और उस वक्त से उसने अपने आप को खुदा के मंसूबे में लाने के लिए अपने आप को जिंदा खुदा के हवाले किया। This conversion from a Christian killer to a Christian proclaimer is the greatest conversion that there's ever been. और इस शख्स की तब्दीली जो है, जो कि मसीहों को कत्ल करता था और अब खुद मसीही होकर मसीह की मनादी करता है, ये तब्दीली सबसे बड़ी तब्दीली है। Once Paul was converted, he was fully in support of proclaiming the message of Christ everywhere that he went, to both Jews and Gentiles. पौलुस रसूल की तब्दीली के बाद पौलुस रसूल ने खुदा की मनादी की और वो जहां जहां जाता रहा मसीह यीशु की मनादी करता रहा। In fact, Jesus told him after he was converted through Ananias that he would go to the Gentiles and proclaim the message of Christ throughout the world. और साउल की तब्दीली जो है, जब वो हननिया नाम एक शख्स को मिला, उसके बाद उसको बताया गया उस शख्स के जरिए से साउल को कि तू गैर अक़वाम में जा और खुदा के कलाम की मनादी कर। And we saw that Saul changed his name to Paul and started taking missionary trips throughout the Roman Empire with different individuals, going to the synagogues first, the Jews, and then to the Gentiles, proclaiming the message of Christ. और यही वो साउल है जिसका नाम बाद में तब्दील होकर पौलुस रसूल बन गया और इसने अपने खिदमती सफर का आगाज किया और ना सिर्फ एक जगह पर बल्कि कलाम अक़दस बयान करता है कि रोम की हुकूमत के अंदर इसने हर जगह मसीह के नाम की मनादी की। And the same Jewish people that used to support him for killing Christians were now trying to kill Paul and beat him and stoned him just like they had done to Stephen. और जो इस्राएल के लोग, यहूदी लोग जो है इस पौलुस की पहले जब ये मसीहों को कत्ल करता था इसके साथ थे, अब वही इसके खिलाफ हो गए और उन्होंने इसे पटवाया और उन्होंने इसे संसार किया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो बाकी रसूलों और स्तिफनस रसूल के साथ उन्होंने किया। But filled with the Holy Spirit, nothing would stop Paul from proclaiming the message of Christ throughout the Roman Empire. लेकिन खुदा के पाक रूह से भरा हुआ वो शख्स यानी पौलुस रसूल, उसने पूरे रोम के अंदर खुदा के कलाम की मनादी की और कोई चीज उसकी मनादी को रोक ना सकी। Paul loved his Jewish brothers and sisters so much that at the end of his missionary journey, he wanted to go to Jerusalem one more time and convince his brothers and sisters that they needed to believe in Jesus and change their eternal destiny, or they were going to see massive destruction. और आखिरी दफा पौलुस रसूल के पास मौका था कि वो अपने प्यारे भाइयों के पास, बहनों के पास जो यरूशलेम में रहते थे, उनके पास जाए और मनादी करे ताकि वो तौबा करके नजात को पा सके। He told them that Jesus was merciful in even though they were responsible for killing Jesus and for killing other messengers, God would forgive them if they would repent at that time. और वो कहता है कि खुदा जो है
कत्ल किया, तो भी अगर तुम आज के दिन तौबा करोगे, खुदा तुम्हें माफ कर देगा. Instead of believing his message and saying, we agree that Jesus is the Messiah, they threatened to kill Paul at that time. और इससे पेशतर कि वो पौलुस की बातों पर तवज्जो कर कर वो कहते हैं कि हाँ, हम तेरे साथ जो है राय रखते हैं कि मसीह ही वो था. उन्होंने पौलुस रसूल को जो है धमकाना शुरू किया और उसके कत्ल की कोशिश में रहे. And it looked like Paul's ministry would end like Jesus's ministry did, and he would be killed in Jerusalem. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल की जो खिदमत है वो बिल्कुल मसीह यीशु की खिदमत की तरह ही लग रही है, जो कि यरूशलेम के अंदर शायद खत्म कर दी जाएगी. But Jesus met Paul in a dream at night. लेकिन यीशु मसीह पौलुस रसूल को ख्वाब में दिखाई देते हैं. Let's read Acts 23:11, please. आए मेरे साथ तमाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे. Acts 23:11. उसी रात खुदावन उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगा. आमीन. आमीन. Paul thought that his ministry was over and he was going to be killed like many prophets had been killed in Jerusalem and like Jesus had been crucified in Jerusalem. और शायद बहुत सारे लोग सोच रहे कि पौलुस रसूल की खिदमत जो है वो यरूशलेम में खत्म हो जाएगी और वो कत्ल किया जाएगा, जिस तरह बाकी रसूल जो है वो यरूशलेम में कत्ल किए गए, जिस तरह मसीह यीशु जो है यरूशलेम के अंदर जो है सलीब पर मसलूब किए गए. But Jesus told Paul, be courageous, Paul, for just as you have testified now in Jerusalem, you will bear witness to me in Rome. लेकिन खुदावन ने पौलुस को कहा, खातिर जमा रख, क्योंकि जिस तरह तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दिया, उसी तरह तू रोम में भी मेरी गवाही देगा. Now, this is a very important principle for us to remember. That is, when Jesus speaks, it happens. And Paul, through many trials, is going to end up, as we see today, finishing his ministry as he goes to Rome, and then he will go to Spain. और ये बहुत ही अहम बात है समझने के लिए कि अगर खुदा कुछ कहता है तो यकीनन वो होता है. और पौलुस रसूल जो है वो बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरा, लेकिन खुदा ने उसको कहा कि तू रोम जाएगा, और वो बिल आकर रोम में पहुंचाया गया. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो रोम में भी खिदमत करता रहा. Now remember, when Jesus said this to Paul, the Jewish leaders were trying to bring a band of army together to kill Paul before he got outside of Jerusalem. और हम देखते हैं कि जब पौलुस रसूल ने यरूशलेम में ये बातें कही थी, तो यहूदी आर्मी लेकर, एक फौज लेकर पौलुस रसूल के ऊपर चढ़ आए ताकि उसे कत्ल कर दिया जाए. But we had Roman leaders, different places that protected Paul from these Jewish people so that he could finish the message that God had given him to do. और हम मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं कि जब यहूदियों ने पौलुस रसूल को पकड़ लिया और उसे कत्ल करने की कोशिश में थे, तो मुख्तलिफ जगह में हम रोमी हुकूमत के सिपाहियों को देखते हैं जिन्होंने पौलुस रसूल की मदद की ताकि वो उनसे बचाया जाए और उस खिदमत को जिस तरह मसीह ने कहा है उसी तरह जो है वो मुकम्मल कर सके. The commander Lysias had him sent to Caesarea, where he preached to Felix, to Festus, to King Agrippa, and then proclaimed he wanted to preach to Caesar. और एक सूबेदार लिसिया ने जो है पौलुस रसूल को जो है वो कैसर के अंदर भेजा, और कैसर के अंदर जब पौलुस रसूल पहुंचाए गए तो फेलिक्स और
आगे उसने मसीह यीशु के कलाम की मनादी की। None of these people proclaimed that Paul was guilty of anything the Jewish leaders had said, that he was actually innocent and could be released if he hadn't appealed to Caesar. और हम देखते हैं कि जहां जहां पौलुस रसूल को जो है वो पेश किया गया था, वहां वहां पौलुस रसूल के मुतालिक ये बयान किया गया कि पौलुस रसूल ने कुछ ऐसा बुरा नहीं किया जो कत्ल के लायक हो। So, what we see here is that God has delivered on his promises, and man who has heard what Paul has done has said nothing. They didn't necessarily believe that Jesus had resurrected and that Jesus offered eternal life, but he had done no crimes that would cause him to be jailed or to be killed. और जब वो पौलुस रसूल को पेश करते थे, तो पौलुस रसूल के मुतालिक जब बातों को सुनते, तो पौलुस रसूल यही उनसे कहता था कि यीशु मसीह जो सलीब पर कुर्बान किया गया और उसको दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, इसके मुतालिक कुछ नहीं कहता है। इसीलिए पौलुस रसूल किसी भी कानून को नहीं तोड़ता या किसी ऐसी बात को नहीं कहता जो कत्ल और सजा के लायक ठहरता है। Basically, they declared Paul innocent of all accusations the Jewish leaders had against him. और जितने भी इल्जामात यहूदियों ने पौलुस रसूल के बरखिलाफ लगाए, उन सब में वो कोई भी साबित ना कर सके और वो कहते थे इसने कुछ गुनाह नहीं किया। So Festus and Agrippa allowed Paul to go and testify, appeal his case to Caesar, and so Paul went on a ship from Caesarea to Rome. और हम देखते हैं कि जो फितनीस था और अग्रिप्पा बादशाह, जिसके आगे पौलुस रसूल ने अपील की थी कि मुझे अपना जो मुकदमा है वो कैसर के यहाँ अपील करना है, तो अब इन्होंने इसकी मदद की ताकि पौलुस रसूल को जो है कैसरिया से जो है वो रोम में पहुंचाया जा सके। As we saw on this journey, Paul told not only the prison guard, but the captain of the ship not to sail, because if they did, the boat would be lost. और जब वो उस जहाज के अंदर सफर कर रहे थे, तो पौलुस रसूल ने ना सिर्फ उस सूबेदार को बल्कि जहाज चलाने वाले पायलट को भी ये कहा था कि मौसम ये नहीं है कि हम सफर करें, लेकिन उन्होंने उसकी ना सुनी। Instead of listening to Paul, they thought they could do what they wanted to do, and so they didn't listen to the messenger of God, and the ship was in a storm, and all the people thought they were going to die. क्योंकि उन्होंने खुदा के नबी की बात ना सुनी और उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे, और जब वो उस जहाज पर सवार होकर गए तो समुद्री तूफानों ने उस जहाज को अपनी लपेट में ले लिया और अब वो सोचने लगे कि हम में से कोई भी ना बचेगा। But Paul told them, just as he would told them they would lose the ship, that if everyone stayed on the ship and no one left, God would spare everyone on there, and he knew the living God who would do so. और फिर वो जहाज पर उन लोगों से कहता है कि अगर सारे जहाज में ही रहे और कोई जहाज से ना भागे, तो यकीनन जिंदा खुदा उन्हें जहाज पर बचा लेगा और उनमें से किसी भी जान की हलाकत ना होगी। Because everything else that Paul had said had come true, the guard and the captain believed him, kept everybody on the ship, and we saw that even though the ship was destroyed, all of the men got to Malta safely. और जो कुछ पौलुस कहता था वो वैसा ही वैसा होता जाता था, और अब जो है वो जहाज के सूबेदार, चलाने वाले, हत्ता कि जो जितने भी कैदी लोग उस जहाज पर मौजूद थे, वो सारे के सारे इस बात को यकीनी जानने लगे कि जो कुछ पौलुस कहता है वैसा ही होता है। और अब जहाज गो के टूट गया, बिखर गया, खत्म हो गया, लेकिन जहाज के लोगों में से कोई भी तबाह हलाक
ना हुआ बल्कि एक टापू पर जा पहुंचे। This is an indication that not only men declared Paul innocent, God had declared Paul innocent by saving his life on the ship so that he might go proclaim the message of Christ in Rome. और पौलुस की जो रसूल की जिंदगी के अंदर जितने भी लोगों ने जो है उसको देखा, उन्होंने कहा कि उसने कुछ गुनाह नहीं किया। और अब मसीह यीशु भी उस जहाज के पर से बताता है कि उसने कुछ गुनाह नहीं किया, और उसी के वसीला से जहाज पे तमाम लोगों की जानों को खुदा ने बचा लिया। But Satan's opposition, trying to destroy the messengers of Christ, like he had done with Jesus and others, was not done. लेकिन याद रखें कि जो अबलीस है वो खुदा के पैगाम को रोकना चाहता है और खुदा के नबियों को कत्ल करवाने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो यीशु मसीह को और बाकी नबियों को कराने की कोशिश करता रहा। Even though Paul had safely arrived on the shores of Malta, he still was not in Rome to proclaim the message. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो सलामती से एक टापू जिसे मल्टे कहते हैं या इंग्लिश में बोले तो माल्टा कहते हैं, वहां पहुंच गया, लेकिन अभी तक वो रोम में नहीं पहुंचा। Let's read Acts chapter 28, verses 1 through 10, please. आए अमाल की किताब के 28वें बाब की पहली 10 आयात को पढ़ेंगे। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते है, और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मीना की झड़ी और झाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातर की। जब पलूस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचा समुंदर से बच गया तो भी अदल इसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटका दिया और उसे कुछ जर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जर ना पहुंचा तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। वहां से करीब पब्लिस नाम उस टापू के सरदार की मल्क थी। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की। और ऐसा हुआ कि पब्लिस का बाप बुखार और पेचस की वजह से बीमार पड़ा था। पलूस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए, और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। आमीन। Okay, so the first thing we see is now that Paul is safely on the island of Malta, he meets with a bunch of very friendly people. हम देखते हैं कि यहाँ पर पलूस रसूल ना सिर्फ जो है सलामती के साथ उस मल्टे टापू में पहुंच गया, बल्कि वहां पर वो कुछ अजनबी लोगों को भी मिलता है। The Maltese showed much kindness and built a fire to warm all of the people who were very cold. और वहां के लोगों ने जो है उन पर मेहरबानी की, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा सर्दी थी और उन्होंने वहां पर जो है आग जलाई। Paul was not just sitting there, he was helping them build the fire, and as he picked up a bundle of sticks, a snake came out, a poisonous one, and bit him. और ये जो जहाज से बच निकले लोग थे, इन्होंने जाकर वहां पर
सिर्फ बैठना पसंद नहीं किया कि अजनबी आग जला रहे हैं, बल्कि इन्होंने उनकी आग जलाने में मदद की। कलाम अक़दस में आप क्या देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो लकड़ियों का एक गट्ठा लेकर आया, और जब आग में उसने डालने को था तो कलाम में लिखा है कि गर्मी की वजह से एक सांप, ऐसा सांप जो जहरीला सांप है जिसके अंदर जहर था, वो उसके बाजू के ऊपर लिपट गया। This led the natives to believe that Paul was an evil murderer, somebody that was not a good person, and the God that had allowed him to live through the storm was now going to kill him through the serpent. अब जब उन अजनबी लोगों ने ये सारी चीजों को देखा तो उन्होंने ख्याल किया कि यकीनन ये कोई खूनी आदमी है, गो के समंदर की लहरों से तो बच गया है, लेकिन खुदा इसे क्या करेगा, अभी ही यहाँ पर मार देगा। But we know, as we saw when we looked back at Job, that Satan was allowed to cause the storm. He was allowed to bring the snake, but God would not allow either of those to kill Paul. लेकिन अगर हम पीछे देखें तो अय्यूब के मुतालिक हम क्या देखते हैं, गो के उसकी जिंदगी के तूफान इतने ज्यादा थे, जब उसके बाल बच्चे मर गए तो भी खुदा ने इसको जीता रखा और उसे बरकतें दी। और यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, गो के एक ऐसा जहरीला सांप आया है तो भी खुदा ने अपने बंदे को सलामत रखा। After shaking the stick off, the people thought that Paul's hand would swell up and he would die, just as other natives who had been bitten by that same type of snake had happened to them. और जब पलूस ने उस सांप को जो उसके हाथ में लटक चुका था उसको झटक कर आग में डाला, तो वो अजनबी लोग सोचने लगे कि अब यकीनन जो है इसका जिस्म सूज जाएगा और ये बाकी लोगों की तरह जिन पर ये सांप कभी आया हो वो मर गए, ये भी मर जाएगा। After no harm came to Paul, they said not was that he was not an evil man, but that he was actually a god. और जब उन्होंने इंतजार करने के बाद देखा कि कोई नुकसान पलूस को नहीं हुआ, तो वो कहने लगे कि ये शख्स जो है ये कोई अबलीसी शख्स नहीं है या खूनी शख्स नहीं है, बल्कि यकीनन ये कोई देवता है। But Paul did not just save himself. As a messenger of Jesus, Paul began to go around and heal other people that had sicknesses. पलूस रसूल जो है, जो खुदा का नबी था, ना सिर्फ वो बचाया गया है, बच निकला है, बल्कि वो उस इलाके में भी फिरा ताकि अगर कोई वहां पर ऐसी तकलीफ में है तो वो उससे भी बचा ले। After he healed Publius's father by praying and laying his hands on him, everyone was amazed at the powers that Paul had. और जब हम देखते हैं कि उस टापू का जो सरदार पब्लिस था, जब उसके बाप को शिफा देता है तो उस टापू के लोग हैरान हुए और जितने भी बीमार थे वो उसके पास आए ताकि वो चंगे हो जाएं। Notice in verse 9 it says, so after he had done this, many in the island brought those who were diseased to him, and he healed them just as Jesus had done around the Sea of Galilee. अगर आप नवी आयत को देखें तो वहां पर क्या लिखा है कि उस टापू में जितने भी बीमार थे वो सारे के सारे उसके पास आए और वो चंगे किए गए, बिल्कुल उसी तरह जब मसीह यीशु भी खिदमत कर रहे थे और जब वो किसी को शिफा देते तो बथेरे बीमार आते और वो चंगे किए जाते थे। Now notice in verse 10 it says they honored us and we departed there after many days. और अगर 10वीं आयत को देखें तो वहां पर क्या लिखा है कि उन्होंने उनकी बड़ी इज्जत की और वो काफी दिन वहां पर रहकर उनसे जुदा हुए। So Luke does not say he departed there and they honored him, but Luke is with Paul at this time, so he's an eyewitness to testify to the shipwreck and the snake bite. यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है, वो कहता है कि उन्होंने हमें, इस बात का मतलब है सिर्फ पौलुस रसूल की इज्जत अफजाई नहीं की गई, बल्कि लूका तबीब जो इस लम्हे पौलुस के साथ था उन सब की इज्जत अफजाई की गई है।
So after 3 months of being in Malta, they finally sailed to Syracuse. And I have the map of Malta in the lower left-hand corner. And then they're going to go to Syracuse and they're going to make their way up to Rome. यहाँ पर मेरे सामने जो है ये एक नक्शा है। यहाँ पर 3 महीने के बाद जो है वो उस टापू से निकले हैं और फिर वो जिन इलाकों में गए हैं ये आपको नजर आ रहा है। उन्होंने यहाँ से सफर किया है और फिर यहाँ तक उन्हें यानी रोम में जाना है। Now, fellow Christians are going to meet them at Three Inns, and you can see that Three Inns is a city just below Rome. और हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जब वो इस जहाज में सफर कर रहे थे तो लिखा है कि उनके जो मसीही बहन भाई वो पलूस रसूल को मिले हैं और वो रोम से तकरीबन 3 शहर पहले जो है वो पलूस को मिले हैं। We're going to see that all the prisoners except Paul were jailed because the guard trusted Paul that he would not run away. अभी हम देखेंगे कि जितने भी कैदी पलूस के साथ थे पलूस अकेला था जो अपने ओन पर या अपने जो उसे मकान मिला था उसके साथ रहा, लेकिन उसके साथ यकीनन एक सिपाही रहता था। बाकी सारों को जेल के अंदर बंद किया गया। Then we're going to see that Paul is going to witness in Rome as God had told him he wanted them to do. He wanted him to do, and he first testified to the Jews in Rome. और उसके बाद हम देखेंगे कि पौलुस रसूल ने रोम में भी जाकर मसीह यीशु की मनादी की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह ने उसको वादा किया था कि जिस तरह तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, तुझे रोम में भी जाकर मेरी गवाही देना होगी। Paul's message divided the Jewish leaders just as it had divided Jewish leaders from the time Jesus had come from heaven to proclaim the message. और पौलुस रसूल की मनादी से यहूदी जो सरदार थे वो तकसीम किए गए क्योंकि मुत्तफिक ना थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह यीशु आसमान से जब जमीन पर आकर उन्होंने कलाम की मनादी की तो उनमें से आधों ने कबूल किया और आधों ने कबूल ना किया। At a rented house, Paul would testify about God's kingdom and the Lord Jesus Christ to all who would come to him. और पौलुस रसूल जो है वो किराए के मकान में रहा और उन सब के साथ खुदा की बादशाही की बातें करता रहा जो उसके घर में उसके पास आया करते थे। God's promise had come true. खुदा के वादे सच्चे और बरहक हैं। Amen. So let's read Acts 28:11 through 16, please. आए 28वें बाब की 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। 3 महीने के बाद हम अस्कंद्रिया के एक जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस टापू में रहा था और जिसका निशान देशकोरी था, और सरकोसा में जहाज ठहरा कर 3 दिन रहे और वहां से फेरे खाकर रेगम में आए, और 1 रोज बाद दुखना चली तो दूसरे दिन पुतेली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उसके पास रहे और इसी तरह रोमा तक गए। वहां से भाई हमारी खबर सुनकर अपिस के चौक और 3 सराही तक हमारे इस्तकबाल को आए, और पलूस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातर जमा हुई। जब हम रोमा में पहुंचे तो पलूस को इजाजत हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। आमीन। Paul's missionary journey from Jerusalem to Rome had many turmoils and trials and many disasters along the way. पौलुस रसूल की खिदमती सफर यरूशलेम से लेकर रोम तक, इस दरमियानिया में उसके लिए बहुत ज्यादा आज़ारसानियां रही, मुश्किलात रही और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का वो शिकार रहा। But despite many opposition, such as the Jewish leaders, such as the Roman leaders, and then such as the
sea, and the snake, Paul overcame all of them through the power of the Holy Spirit. और इस सारे सफर के अंदर पौलुस रसूल जो है वो जब इस सफर को कर रहे थे तो वो बहुत सारी ना सिर्फ मुश्किलात का शिकार रहे बल्कि हजार सानियों का भी शिकार रहे। कभी वो किसी बादशाह के आगे, किसी हाकिम के सामने, कभी सांप के असर के अंदर, कभी जहाज के तोड़े जाने के असर में, तो भी वो इन सब पर काबू पाया और वो मसीह की मौत पर गया। The final stages of the voyage were calm, predictable, and joyful as he met up with fellow believers. और आखिरकार वो पुरसुकून रहा, खुशी से भरा रहा और अपने भाइयों से मिल सका। God's provision and protection proved sufficient to replace items that were lost in the storm. और खुदा का वादा और खुदा की मदद हमें ये बताती है कि हम तूफानों में भी खुदा पर भरोसा करें। Just as Satan had taken everything from Job, God had replaced it. जिस तरह शैतान ने अय्यूब से उसका सारा कुछ ले लिया, तो अभी खुदा ने उसको दुगना वापस लौटाया। Let's read Job 42, 12 and 13, please. आए मेरे साथ अय्यूब की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 12 से 13 आयत तक पढ़ेंगे। अय्यूब की Job किताब उसका 32 बाब और उसकी 12 से 13 आयत को हम पढ़ेंगे। Let's read Job 42, 12 and 13, please. Okay. जहाँ भी कुछ यूं मरकूम है, यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गद्दियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। आमीन। Just as God had replaced everything lost to Job, he's done the same with Paul. जिस तरह खुदा ने अय्यूब की खोई हुई चीजों को वापस अय्यूब को दिलाया, उसी तरह खुदा ने पौलुस की खोई हुई खुशी को वापस पौलुस को लौटा दिया। This proves that what Jesus said in the Sermon on the Mount, God will provide all the needs of those who are willing to serve him. Okay. Just as Jesus had said at the Sermon on the Mount, God will provide for all their needs. Keep continue, please. So the storm that began in Jerusalem, God had now calmed. और हम देखते हैं कि जब यरूशलेम के अंदर जो है वो तूफान आया, जब यीशु मसीह उस कश्ती पे था, तो यीशु ने उस तूफान को थमा दिया। Paul's welcome at 3 ends from fellow believers was further proof that the worst was over. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो अपने बाकी भाइयों को जो है इस सफर के अंदर जो है वो मिलता है और उन्हें बताता है कि सारे तूफान खत्म किए गए हैं। All prisoners except Paul were jailed. पौलुस रसूल के अलावा बाकी सारे जो कैदी थे उन्हें जो है वो जेल में रखा गया। The centurion let Paul dwell in a house with one guard instead of putting him in prison so he could continue to proclaim the message. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल किराए के एक मकान में रहा जिसके ऊपर एक पहरेदार मुकर्रर किया था, तो भी उसे इतनी इजाजत थी
कि वो खुदा के कलाम की मुनादी जो है वो कर सके। We as readers should see that this is yet another blessing from God on Paul, his faithful servant. हम ईमानदार इस बात को समझ सकते हैं कि ये खुदा की एक और मेहरबानी है जो उसने पौलुस रसूल पर की। Now let's read verses 17 through 31, please. आयत 17 आयत से 31वीं आयत तक पढ़ेंगे 28वें बाब की। 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलाया और जब जमा हो गए तो उनसे कहा, ए भाइयों, हर चंद में मैंने उम्मत के और बाप दादा की रस्मों के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से कैदी होकर रोमियों के हाथ हवाला किया गया। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब न था। मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्जाम लगाना था, बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इस्राएल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, ना हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में खत आए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई बयान की, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इस फिरका की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके खिलाफ कहते हैं। और वो उससे एक दिन ठहरा कर कसरत से उसके यहाँ जमा हुए, और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों से यीशु की बाबत समझ समझ कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बाज ने उसकी बातों को मान लिया और बाज ने ना माना। जब आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पलूस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रुल कुदस ने यसाया नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा है, इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, कहीं ऐसा न हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं, और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। आमीन। Notice Okay. as Paul had done through all his missionary journeys, the first group of people he goes to are the Jews to proclaim the message of Christ in the kingdom of God. यहाँ पर तवज्जो करें कि पौलुस रसूल जो है वो हर तरह के लोगों के पास गया, पहले यहूदियों के पास और बाद में गैर कौमों के पास, और उन्हें जा कर समझाता रहा कि दर हकीकत वो यीशु मसीह का नबी है जो तुम्हें यीशु की बाबत बातें बताता है। Paul claimed that he was a Jew by calling them brethren, by saying our people, and saying my nation Israel. जब पौलुस रसूल उन्हें अपने भाई कहता है या अपनी उम्मत कहता है, तो इसका मतलब है कि वो उन्हें बताना चाहता है कि वो उनका यहूदी भाई है। The first thing when Paul gets to Rome is he tries to establish good relations with the Roman Jews. पहली चीज जो पौलुस रसूल रोम में जाके वो क्या करता है कि वो जो यहूदी सरदार है उनके साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाता है। He told them that even though the Jews in Jerusalem tried to kill him, the Romans overruled what they did because it was illegal. और वो उन्हें ये भी बताता है कि गो के जो यरूशलेम के यहूदी सरदार थे वो मुझे कत्ल करना चाहते थे, लेकिन रोमियों ने जो है वो मुझे बचाया है। Paul said that it was only Jewish antagonism that forced his appeal to Caesar. और ये पौलुस उसे कहता है कि उन
This allowed, appealing to Caesar, allowed Paul to come and give the message of the kingdom of God to the Roman Jews. और पौलुस रसूल का जो है कैसर के यहाँ अपील करने की वजह से ही अब उसके पास ये मौका था कि वो रोम में जाकर खुदा के कलाम की मनादी कर सके. In verses 21 and 22, we see that the Jewish leaders were open to Paul's message and willing to hear him without being impartial. 21 और 22वीं आयत को अगर आप देखें तो यहाँ पर पौलुस रसूल जो कुछ कह रहा है यहूदी जो रोम के यहूदी हैं वो उसे सुनना चाह रहे हैं बगैर किसी दूसरी वजह के. One reason is they had heard no adverse reports about Paul, which were given in Jerusalem. और एक चीज जो है वो ये है कि पौलुस रसूल के बरखलाफ जो है वो यहूदा से कोई भी खत जो है वो भेजा नहीं गया है. They also asked Paul what he thought about Christianity. और वो जो है पौलुस रसूल जो है मसीहत के बारे में भी बताता है. Paul used the Old Testament and preached all day long that Jesus is the Christ. पौलुस रसूल जो है वो पुराने ऐतनामे से शुरू कर जो है वो नए ऐतनामे यानी मसीह यीशु के मुतल्लिक उन्हें बताता है सुबह से लेकर शाम तक. Paul testified to them that Israel's hope is God's future kingdom when Israel will possess the land that had been taken from them. और पौलुस रसूल जो है वो गवाही देता है कि जो इस्राएली है वो आसमान की बादशाही में मसीह यीशु पर ईमान लाने के सबब से ही पहुंचाए जाएंगे. Paul used the argument from the law of Moses and the prophets that Jesus is the Christ, that is, the Old Testament pointed to him as the Christ. पौलुस रसूल जो है वो नबियों और मूसा की शरीयत के से भी उन्हें यह साबित करता है कि पुराने ऐतनामे में जितनी भी बातें लिखी है वो दर हकीकत मसीह यीशु में ही पूरी होती हैं. Their disagreement led Paul to remember Isaiah's prophecy of Israel that they would have eyes but not see, ears that would not hear, and a heart that would not understand. और जब उन्होंने इन बातों को कबूल ना किया तो पौलुस रसूल ने यशायाह की किताब में से उनके मुतल्लिक पढ़ा कि यशायाह नबी की मार्फत यूं लिखा है उनकी आंखें तो है पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं है. Unfortunately, his day-long testimony only persuaded a few in the group. और आखिरकार पूरा दिन उनके साथ बहस करने के बाद कुछ लोग ही उसकी बातों पर ईमान लाए. Their blindness to the message should unite Israel, not divide them. और उनकी आंखों की जो अंधगी थी उन्हें जो है वो एक बात पर मुत्तफिक ना किया बल्कि जुदा किया. The unbelief that we see in Israel throughout Luke and Acts validates that Israel's blindness and hardened hearts was predicted. अगर हम लुका तबीब के जरिए लुका की इंजील और अमाल की किताब में से देखें तो लुका तबीब जो है बार इस्राएलियों को क्या कहता है कि वो अंधे हैं और वो देख नहीं सकते. It doesn't matter what city God's messenger is in, the results are often rejected that Jesus is the Christ. क्योंकि खुदा का कलाम हर एक शहर में पहुंचाया गया कि यीशु ही दर हकीकत वो मसीहा है, लेकिन उनमें से बथेरों ने ईमान ना लाए. Then Paul told them that their blindness would cause salvation to be sent to the Gentiles. और वो कहता है तुम्हारे इसी अंधेपन की वजह से नजात जो है वो गैर कौमों के पास भेजी जाती है. After quoting Isaiah, Paul told them their rejection of the message of Christ freed him to go to the Gentiles and preach the same message as he had done in the past. और वो कहता है कि क्योंकि तुमने कबूल ना किया आप जो है गैर कौमों के पास भेजी जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पौलुस रसूल अपनी खिदमत में पहले यहूदियों के बाद और बाद में गैर अक़वाम के पास जाता था.
Israel's blindness and hard hearts would give the Gentiles the opportunity to hear, and the Roman Jews have validated Paul's current journey. और हम देखते हैं कि यहूदियों ने इस पैगाम को कबूल ना किया, लेकिन रोमी हुकूमत ने पौलुस रसूल को जो है वो इतनी आजादी दी कि वो खिदमत के इस काम को कर सके. And this message will be proclaimed until the fullness of the Gentiles is done. और ये पैगाम जो है तब तक चलता रहेगा जब तक गैर अक़वाम के लोग जो है वो आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो जाएंगे. Paul testified to all who came to him about God's kingdom and the return of Jesus Christ from a rented house. और पौलुस रसूल जो है वो अपने किराए के मकान के अंदर रहकर खुदा की बादशाही की मनादी करता रहा और बताता रहा जब तक कि मसीह ना आ जाएगा. These events let Paul preachly bold the things concerning the Lord Jesus Christ to all in Rome for the next 2 years. और अगले 2 साल जो है वो अपने उसी मकाम में बड़ी दिलेरी के साथ पाक रूह से खुदा के कलाम की मनादी करता रहा. So Paul was imprisoned from February of AD 60 to March of 62, proclaiming this message. और पौलुस रसूल जो है वो कैद खाने में फरवरी के अंदर जो है सन 60 के अंदर रहा और 2 साल तक 60 से 62 तक मार्च तक जो है वो उस जगह पर रहा. While he was imprisoned, he wrote the letter to the Ephesians, the book of Ephesians, in the fall of AD 60. और उसी कैद खाने के अंदर जब वो था उसने इफिसियों को लिखा. Then he wrote Colossians and Philemon in fall of 61. और इसके बाद जो है 61 के अंदर लिखा. Then he wrote Philippians early in the spring of 62. These are all while he was under house arrest. और बहार के मौसम में सन 62 के आगाज के अंदर उसने फिलिपियंस के नाम जो है खत को लिखा और ये सारे खतूत उसने उसी किराए के मकान में रहकर लिखे. In the spring of 62, James, the half-brother of Jesus, was martyred. और सन 62 के अंदर जो है यीशु मसीह का जो कजन भाई याकूब था उसका जो है वो कत्ल किया गया. In late 62 and early 63, Paul was in Macedonia. और हम देखते हैं कि इसके बाद जो है पौलुस रसूल जो है 62 के जो आखिरी महीनों और 63 के जो शुरू के महीने हैं इन महीनों के अंदर जो है वो मल्तीनिया के अंदर पहुंचाया गया, मकदीनिया के अंदर पहुंचाया गया. There he wrote 1 Timothy in the fall of 62. और इसी दुरानिया के अंदर जो है उसने पहला तीमुथियुस का खत जो है वो लिखा. Then in the summer of 66, Paul was in Asia Minor and he wrote Titus. और इसके बाद सन 66 के अंदर गर्मियों के महीने के अंदर जो है वो जो है एक और जगह पर जो है वो एशिया के अंदर गया. Then in AD 67, he's arrested again and he wrote 2 Timothy. और 67 सन 67 के अंदर उसे दोबारा जो है वो अरेस्ट किया गया और उसने जो है दूसरा तीमुथियुस का खत लिखा. Paul was put to death in the spring of AD 68, and then Jerusalem was destroyed in AD 70. और इसके बाद जो है पौलुस रसूल जो है वो मर गए और उसके मरने के बाद जो है यरूशलेम को तबाह किया गया. But Paul's death does not occur before he did everything that God wanted him to do as a messenger of Christ. पौलुस रसूल का इंतकाल तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि खुदा ने जो उससे बातें कही थी वो पूरी ना हो जाए. The book of Luke Acts is showing it doesn't matter if people die. The message through the power of the Holy Spirit continues to grow until Jesus is going to return and initiate his kingdom.
लुका तबीब अपनी इन किताबों यानी अमाल की किताब में और लुका की इंजील में ये बात को लाजम लिखता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के याम कितने हैं। हाँ, खुदा का कलाम फैलता जाएगा जब तक कि मसीह दोबारा इस दुनिया में ना आ जाए। It is our responsibility to proclaim this message until Jesus returns. मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम की मनादी करें जब तक कि मसीह दोबारा इस दुनिया पर ना आ जाए। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, these two books are so powerful. We just pray through the power of the Holy Spirit that you would guide us and encourage us to proclaim this message until your Son returns. खुदा पाक, खुदा हम शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, खुदा जिसने बड़ी कुर्बानी दी, और इस सारे पैगाम के लिए जो हम सुनते और सीखते हैं। हमें फजल बख्श के तेरे कलाम की बुनियादी करें जब तक कि तेरा बेटा यीशु इस दुनिया में दोबारा ना आ जाए। As we spend the next few weeks celebrating your first advent, that is coming to give us eternal life, may we look forward to your second advent when we will live with you in your kingdom forever. In Jesus' name we pray. Amen. जिस तरह खुदावन देख हम इन अय्याम में आमद के दिनों को मना रहे हैं, फजल बख्श के तेरी दूसरी आमद को भी मना सके, और जब तू आए तो हम तैयार रहे। यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। Thank you. God bless you. Merry Christmas. Thank you so much. You can see churches are filled with the people, and also the Christmas decorations. Soon our Christmas program will be started, and thank you once again for all your love and share with us. Still not we are receiving, but tomorrow hopefully we can be received then, and then the Christmas program will be begin. So Wonderful. thank you once again. God bless All right. you. God bless.